a solid sphere. Now, the next point which I am continuing is page number 245, that is potential due to spherical shell. Okay, potential due to a spherical shell. Now, spherical shell is, you know, it is a shell of radius r, mass m. As I told you, there were 3 points. One outside the body, that was at a distance of r, point P. This is outside. This was छोटो r is greater than capital R. So potential at this point P was minus Gm by R, same as that of point mass. Because we are assuming that the net mass of the spherical shell is concentrated at the center. This was your case 1. Case 2, on surface of shell. So on surface of the cell, as I told you, छोटो r will become equal to capital R. So potential on the surface is going to become minus Gm by capital R. Okay. Now, case 3, listen to me. This is important. This is a spherical shell of radius r, mass m, and we are interested at a point inside the body. Inside, if I tell you it is छोटो r is less than capital R, it's inside. Can anyone tell me how much is the gravitational intensity inside the shell? हेलो, इस पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी रहेगा, कितना? लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, हाउ मच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द शेल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इनसाइड द शेल? यस प्लीज, एनीवन? 0. जीरो, इट इज जीरो. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो है, फोर्स ही जीरो है, तो वर्क डन भी नहीं होगा भाई. यू हैव हर्ड अबाउट दिस फॉर्मूला, एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर. तो अगर फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो इसका तो सवाल ही नहीं होता ना, ये भी तो जीरो हो जाए. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Because there is no force, so there is no intensity, so there is no potential. So potential inside is going to become zero. I'll prove this by another thing also, which will come later. ये चीज ध्यान रखनी है. So this is all about spherical shell. Spherical shell. I am very sorry. Okay, there's a mistake from my side over here. एक मिनट. जीरो नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा. See, as you all told me that gravitational intensity inside is जीरो, ये तो पता है ना, हम कर चुके हैं. अच्छा, फॉर्मूला देखो, एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर. हेलो, Yes. मालूम है ना, एफ इज माइनस डी यू बाई डी आर, ये मालूम है सबको. एफ को लिख सकते हैं एम इंटू ई, हमने पढ़ा है ना, ई इज एफ बाई एम, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू. यू को कैसे लिखेंगे? वी बाई एम, वी इंटू एम, वी इंटू एम.
m और m तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. eg will become माइनस dv by dr. ये हम पढ़ चुके हैं पहले. तो अगर आपने बोला कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अंदर जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव रूल? कांस्टेंट. कांस्टेंट हो जाएगा. बराबर है ना? हेलो, यस और नो? यस सर. So inside potential is constant. Potential inside is constant and same as that of surface. तो मतलब इधर का पोटेंशियल अगर v है तो अंदर किधर भी पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा? v रहेगा. एंड व्हाट इज v सरफेस? माइनस जी एम बाई कैपिटल आर. ठीक है, गिरेंगे ना? बिकॉज जैसे आप सरफेस के अंदर जाएंगे, जैसे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा. एंड वंस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकम्स इक्वल टू जीरो, potential remains constant. So if I make a graph of this thing of potential versus r, can I say center से surface तक it is constant, that is minus gm by capital R, same as that of surface, and outside जाएंगे तो it is will become inverse to r. Yes or no? हेलो, sir. ये चीज है. तो ये ध्यान रखना. इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग अभी आज. This derivation Eg is minus dv by dr, we will study that thing. Okay, further. Now the last concept which we are studying, ये कॉपी कर लेना आप लोग. The last concept which we are studying today is potential due to uniform ring on its axis. So if there is a ring, radius r, and there is small r over here on the axis, we want to find potential at point P. Okay. So हमने क्या बोला था? यहाँ पर एक टुकड़ा पकड़ता है और उसका पोटेंशियल निकालता है. पोटेंशियल ड्यू टू दिस मास dm कितना रहेगा? हेलो, छोटा पोटेंशियल कितना हो जाएगा ड्यू टू दिस मास dm? माइनस जी m कितना है? dm बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? हेलो, डू यू एग्री? यस सर. ये छोटे मास के कारण, but I am interested in the total potential, so I'll integrate this thing. ठीक है ना? I'll integrate this thing. ये हो जाएगा 0 to v और ये हो जाएगा 0 to m. So इंटीग्रेशन dm m ही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस gm, इसका मास पूरा m है यहाँ, अपॉन रूट ऑफ r square plus r square will be the potential at point P. So I'll write it as minus gm by root of r square plus r square. Getting it now? Hello? Hello? अच्छा, can anyone tell me what is potential at the center of the ring? सेंटर में क्या करना है? छोटो आर को जीरो बना देना है. जाएगा माइनस जी एम बाई कैपिटल आर. सो इसका ग्राफ ऐसे रहेगा, पोटेंशियल वर्सेस आर का. एट द सेंटर इट इज माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है ना? हेलो. Yes, sir. सो इस चीज का आप फॉर्मूला लिस्ट बना के इसको याद कर लेना. डेरिवेशन कोई कुछ पूछने वाला नहीं है. दे आर ओनली गोइंग टू आस्क यू एप्लीकेशंस.
ओके, सो आपको ये जो सेक्शन है, जो हम लोग सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, उसका पूरा फॉर्मूला लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा. Everything is given in DC Pandey in a very proper manner. He has also neglected all the derivations. So, okay, we just need to make the formula properly and just do numericals. I'll be starting with numericals right now. देखते हैं introductory exercise 13.3 पर आते हैं. 13.3 which is there. Let me see. Okay. Yeah, listen to me. Okay, just pay attention, please. They are telling you 2 point masses M and M are kept at the vertices of an equilateral triangle. Can you see the slide ना? Hello, slide दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes. 2 point masses M and M are kept at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. Find the gravitational potential and the magnitude of the strength at O. तो इधर है ना, हमको फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है. सबसे पहले E, पोटेंशियल भी पूछा है, V भी पूछा है और E भी पूछा है. तो दोनों चीज सबसे पहले मैं E निकालता हूँ. ओके, सो आई विल फाइंड E. E बट वेक्टर है ना, तो आई नो दैट अगर एक पॉइंट मास होगा और इधर हमको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, so we know the direction of gravitational intensity is this, and gravitational intensity due to a point mass is minus gm by r square. Do you agree with me? Hello, yeah na? Yes, sir. And the direction is towards the mass. तो इस पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालना है तो एक मास तो ये है, तो इसका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इधर रहेगा. इसको नाम कितना देगी? E. ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना रहेगा? Eg रहेगा. E रहेगा. Can anyone tell me what is the angle between this E and that E? ये दो E के बीच में एंगल कितना है? 60 degree. 60 degree. अच्छा, what is the magnitude of this E? दोनों का E सेम है. Can anyone tell me what will be the resultant answer? √3. √3. ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं. So resultant answer will become √3E. That is the E net. And will be at the perpendicular bisector, मतलब 30 डिग्री पे आएगा. ये 30 डिग्री पे आएगा. It will be √3 times of E. E को लिख सकते हैं minus gm by r square, minus √3 gm by r square या a square, जो भी साइड a है ना, तो a square लिखेंगे ना. करेक्ट. दिस विल बी द रिजल्टेंट आंसर ऑफ E. ये मिल गया हमको. अब ये पहला खत्म हो चुका. केस 1 आई हैव डन. केस 2, टू फाइंड पोटेंशियल. पोटेंशियल आपको मालूम है एक स्केलर क्वांटिटी है, और हमको मालूम है ड्यू टू अ पॉइंट मास at a distance of r at point P, the potential at point P is minus gm by r. तो हमको अगर मालूम है यहाँ पर अगर दो मासेस रखे हैं, एक m और दूसरा m at a distance of a and a, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर there will be two potentials ना, one due to this वाला m and other due to this वाला m. It will become minus gm by a और दूसरे वाले का minus gm by a. So potential net will become minus 2 gm by a. Hello, कैसा नो? और उसका कोई डायरेक्शन नहीं है because it is a scalar quantity. सही है ना? हेलो बेटा, Yes, करेक्ट है. हाँ ठीक है. तो ये चीज है, ये चीज हमने की किसके लिए? पॉइंट मास के लिए. तो अगर आपको फॉर्मूला आता रहेगा तो यू विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर हम.
ठीक है ना. I'm going to do the next question. Pay attention. Question number 2 पर आता है. Five point masses are kept at the vertices of a regular pentagon. Distance of the pentagon from any one of the vertices is distance of the center of the pentagon. Any vertices is A. Find the gravitational potential at the center. इधर ध्यान दो. सही है. ये A दिया है, ये सेंटर है, और ये मास M इधर रखा है. 2, 3, 4 और 5. Find the gravitational potential and the field strength. Okay, सबसे पहले I'll find potential. एकदम आसान है potential. Can anyone tell me what is potential due to a point mass? Hello? अरे tell me man. Potential का formula क्या है due to a point mass? GM by Minus GM by R. तो यहाँ पर इस सेंटर पे कितने पोटेंशियल आएंगे, कितने मासेस है? 5. एक के कारण आएगा माइनस GM by A. Can I say into 5? Hello, do you agree with me? Yes, sir. स्केलर है तो सीधा ऐड कर देना ना, वेक्टर वेक्टर तो है नहीं. अच्छा अभी इधर आ, मेरी बात सुनो. ये तो हो चुका. डन. केस 2 के बारे में बात करता है. टू फाइंड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, दैट इज EG. वेक्टर है तो डायरेक्शन भी आएगा. अच्छा व्हाट इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फार्मूला ड्यू टू अ पॉइंट मास? माइनस GM by R स्क्वायर. हेलो. एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट मास. तो एक ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इधर आएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर. क्या अग्री करते हो? हेलो. Yes, Due sir. to each and every point mass, gravitational intensity will be this much. अच्छा, how much is the angle between two E's? दो consecutive E, दो adjacent E के बीच में एंगल कितना है? 72. 72. 360 divided by 5 ना बेटा? Yes or no? Yes, sir. अब मेरी बात सुनना, मजा आएगा. देखो इधर 360 divided by 5 आएगा. अच्छा क्या मैं ऐसे इसको बना सकता हूँ? ध्यान देना है इधर. अगर मैं यहाँ पर एक पेंटागन बनाने जाता हूँ तो इसको पहले पकड़ता हूँ मैं. दिस वन, दिस, ये E बना. हेलो. हेड ऑफ दिस I will place the tail of the second. हेलो. अरे भाई इसको लिया फिर इसको लिया. यस और नो? Yes, sir. कितने डिग्री पर है दोनों के बीच में? 72. सही है ना? Yes, sir. फिर इसको रखा. Getting it? हेलो. फिर Yes, sir. इसको रखा और फिर इसको रखा. ऐसे कुछ. यस और नो? कैन आई से ये कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करेगा? पॉलीगन लॉ. रिमेंबर? हेलो, डू यू रिमेंबर पॉलीगन लॉ? अरे Yes. भाई ट्रायंगल लॉ अगर आपको याद है तो दिस इज A बार एंड दिस इज B बार. बेटा वेयर विल C बार कम? C बार कहाँ आएगा? रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन द, From the tail of E to the head of E. ये R बार है ना?
Can I say this will be the resultant? Yes or no? Hello? Yes, sir. अच्छा मेरी एक बात बताओ, अगर ये उल्टा रखता है इसको, अगर इसको उल्टा रखता मैं तो कितना हो जाता? ई ई नेट को ई को ऐसे रखता मैं तो क्या होता? तो क्या हो जाता आंसर? हेलो? अरे बाबा, rather than this arrow I would have made the arrow this way, then what would happen? minus. हाँ मतलब जीरो हो जाता ना आंसर. हेलो? मतलब वो क्लोज पॉलीगन बन जाता है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I say this E net? This E net is this, which corresponds to a single E, and the direction will be that way, upwards. And this E will represent what? Minus gm by a square. It is a single E, na? हेलो? Yes, sir. एक मिनट. हाँ एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया? ये क्लोज तो नहीं बन जाएगा? क्लोज ही बन जाएगा ना ये? एक मिनट. हाँ एक मिनट. यस, दिस विल बी अ क्लोज लूप ओनली. आंसर जीरो ही आएगा. बिकॉज 72 जब पूरा बंद हो जाएगा तो इट विल रिप्रेजेंट 360 डिग्री ना. हेलो? देखो, इसको बंद करते हैं हम लोग. ये तो ठीक है. इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये 72 72 72 72 and 72 will it represent 360 डिग्री पूरा? हेलो? हेलो? क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब ये 72 है ना, ये भी 72 होगा. So how कितना is डिग्री? that angle 70? सब एंगल 72 है ना बेटा, ये देखो ना, कंसेक्यूटिव एंगल 72 है ना सबके बीच में. So sir, shouldn't the outside angle be 72? हाँ, आउटसाइड एंगल विल बी 72. यस. यस. I am trying to tell you that it will form a closed loop. It will form a closed loop. देखो ये और ये कहना चाह रहे हो ना आप? ये एंगल करेक्ट है ना? हेलो? Yes, sir. अब ये देखो और घूम गया 72. यस और नो? और ये देखो और घूम गया 72. यू गेटिंग इट? Yes, sir. और ये और घूम गया 72. तो कितना डिग्री घूम गया? हेलो? कितना डिग्री रोटेट हो रहा है भाई ये? 360 हो गया ना? यस और नो? हेलो? Yes, sir. तो 1 70 2 3 4 और ये 5. पूरा 360 डिग्री जब घूम गया
तो इट विल फॉर्म अ क्लोज लूप, एंड क्लोज लूप का वेक्टर फॉर्मेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस और नो? हेलो। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सपोज पे अटेंशन टू मी, अगर मैं इधर से एक मास निकाल दूं, नाउ पे अटेंशन टू मी, एवरीवन जस्ट पे अटेंशन, अगर मैं इधर से ये वाला मास निकाल देता हूं, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द पोटेंशियल? व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर नाउ? हेलो। E. पोटेंशियल, नहीं, पोटेंशियल एट द सेंटर 4 GM/R. -4 GM बाई है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? यस और नो? GM. ये तो सेम ही रहेगा। अच्छा, नाउ केस 2, कैन आई से ये वाला ई नेट निकल जाएगा, ये वाला जो ई नेट है वो निकल जाएगा। यस और नो? Yes, sir. नाउ दिस ई नेट निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? सुनना मेरी बात अभी इधर, इन दिस पॉलीगन विच ई नेट विल गो बेटा? दिस ई नेट विल गो ना, ये लास्ट वाला जो ई नेट था ये चला जाएगा। भाई करेक्ट है क्या? हेलो, अच्छा. कुछ समझ में आ रहा है बात? ये इनेट चला जाएगा। कैन आई से दिस इज an incomplete polygon? So who gives you the resultant? अरे भाई, who gives you the resultant? No, in the polygon who gives you the resultant? The last side ना? Hello, can I say Yes, sir. this will be the E net? But this E net was equal to what, sir? E only ना, in the previous case. अच्छा, अगर ये बंद होता तो ये E आता ना? हेलो, बट डायरेक्शन उसका, अगर ये बंद होता तो नीचे आता, बट सिंस इट इज इनकम्प्लीट, डायरेक्शन ऑफ E net will be up ना? हेलो, so what will be E net का वैल्यू? Same as that of E, and it will be minus gm by a square. Do you agree with this term? Do you agree? हेलो यार, हाँ ना बोलो, करेक्ट है क्या? Yes, sir. ये चीज का ध्यान रखना, ये आता है ना एग्जाम में, एक निकाल देंगे तो ऐसे होगा, दो निकाल देंगे तो ऐसे होगा, कंप्लीट होगा तो 0 हो जाएगा। Always remember, whenever it is forming closed loops, it will result in 0 only. So the third question says that only. In the above problem, if any one of the point mass is removed, then what will be the gravitational potential and gravitational field at the center? ये हम कर चुके हैं अभी. So the third point is also done. Third question is also done. Remember, please. Question number 4 पर आता है. Listen over here. A particle of mass m is placed at the center of a shell. There is a shell. And particle of mass छोटो m is placed at the, ये छोटा मास है, यूनिफॉर्म शेल ऑफ रेडियस r, तो इसका रेडियस r है. Find the gravitational potential at a distance of r by 2 from the center. Can anyone tell me r by 2 from the center is inside or outside? R by 2 from center is inside or outside? Right. Inside है ना? ये है. Can I say I want to find potential at this point P where छोटो r will become r by 2? Yes or no? इधर ढूंढना है. अच्छा, can I say this potential? Can I say this potential will be divided into two parts? One due to a point mass which is kept at the center. इसके कारण तो potential at a distance of r by 2 निकालना है ना? This is due to point mass. Plus potential inside the shell at a distance of छोटो r. Yes or no? Hello? Yes, sir.
भाई दोनों के कारण पोटेंशियल आएगा. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास एट दिस पॉइंट? बोलो. हेलो. ये आंसर कितना रहेगा? पोटेंशियल एट पॉइंट -2 GM/r. माइनस जी एम बाय छोटो आर. भाई छोटो आर इज आर बाई 2 ना. माइनस जी एम बाय आर ना बेटा. हेलो. हेलो. Yes, sir. हेलो. हाँ, ये तो ठीक है ना. ड्यू टू पॉइंट मास ये कितना रहेगा? -2 GM बाय, जैसे आपने कहा, सही कहा, ये सही है. अच्छा, दूसरा वाला व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल इनसाइड? कैन आई से पोटेंशियल इनसाइड अ शेल इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस? हेलो. याद है ना ये? अरे अभी किया थोड़ी देर पहले भाई शेल का. यस और नो? Yes, sir. और दोनों का मास सेम है, मतलब पॉइंट मास भी सेम है और इसका मास भी सेम है, तो उसको भी छोटो एम पकड़ लेते हैं. सो कैन आई से नेट पोटेंशियल स्केलर ही है, तो दोनों को ऐड मार देंगे. -2 GM बाय आर -GM बाय आर -3 GM बाय आर. स्केलर है तो सीधा ऐड कर देना, कोई टेंशन नहीं है. हेलो. यस और नो? यस और नो? क्लियर है ना? तो ऐसे सब सम्स जेई मेन में पूछे जाता है. ओके, रिमेम्बर दिस थिंग, बहुत काम की चीज है. आपको फॉर्मूला लिस्ट अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा. once you make the formula list for 13.3 introductory, then it will become very easy only. क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है. A particle of mass 20 gram kg experiences a force of 4 Newton along the x-axis. Find the gravitational field at that point. The gravitational intensity is force experienced by the unit mass. Na? 4 into 20 into 10 raised to -3, and it is along the x-axis. ये कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन पर केजी. क्या बराबर है ना? वेक्टर है ना भाई. जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है, इतना तो पता ही रहेगा भाई. ये वेक्टर फॉर्मेट है ना ये, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स तो ये डायरेक्शन में लग रहा है ना. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. आई विल गो टू अनदर कॉन्सेप्ट नाउ. So what is the difference between acceleration due to gravity and EG? EG due to earth is G. EG on the surface of the earth is G. ठीक है, मैं बताता हूँ. चलो इधर ध्यान दो. सपोज इधर आप अर्थ के सरफेस पर हो, कितने डिस्टेंस पे रहते हैं? ये बराबर है क्या? Yes, sir. ये मास है ना. Can anyone tell me what is the gravitational force between him and him, mass and earth? GMM by R square. r square. बड़ा r square. Can I say gravitational intensity will become F by m? कितना हो गया? GM by R square. But GM by r square G होता है ना. Hello. So can I say EG numerically is G over here? Hello. Gravitational intensity is numerically equal to G. दोनों का कोई रिलेशन नहीं है बेटा. ये जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. हेलो. और ये जो है वो फील्ड स्ट्रेंथ है एट दैट पॉइंट. बट न्यूमेरिकली दोनों, क्या कह रहा हूं मैं? Same है. सेम है. ओके. न्यूमेरिकली दोनों सेम है. ओके. एक है स्ट्रेंथ, दैट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, और एक है एक्सेलरेशन. ओके. न्यूमेरिकली बोथ आर द सेम.
चलो आगे बढ़ते हैं। Now we come to relation between gravitational intensity and potential। हमको मालूम है ये वेक्टर है और ये स्केलर है। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। I'm going to give you a very important concept right now. Pay attention to me. अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने पढ़ा था याद है? वर्क पावर एनर्जी के अंदर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is u final minus u initial. Do you remember this thing? Hello? Yes. Conservative force is gravity. You must be knowing that thing. You must be aware of this thing. अरे भाई हाँ ना बोलो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन को लिख सकते हैं एफ बार डॉट डी आर बार फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डू यू एग्री? हेलो, Yes, sir. ये सही है ना? अच्छा, आर इनिशियल टू आर फाइनल, एफ को लिख सकते हैं एम इंटू ई जी बार डॉट डी आर बार। एफ इज एम ई ना? हेलो, अरे अभी तो सिखाया ई इज एफ बाय एम ना? ई इज एफ बाय एम ना? हेलो, Yes, sir. अच्छा यू को लिख सकते हैं कैसे? एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यस और नो? पोटेंशियल रिमेंबर ना, पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल पर यूनिट मास। हेलो, ये सुना है फॉर्मूला आप लोगों ने? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का। ठीक है, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये एम और ये एम कट जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट? आर इनिशियल टू आर फाइनल ई बार डॉट डी आर बार या ई जी बार डॉट डी आर बार इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हेलो हेलो यार बोलो, करेक्ट है क्या? Yes, sir. ये एक है इम्पोर्टेंट, ये दूसरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ, डिफरेंशियल फॉर्मेट में, तो कैसे लिखूंगा? अगर सपोज ये ई यूनिफॉर्म है, ये सपोज ये ई जो है यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन तब करते हैं हम लोग जब यूनिफॉर्म नहीं रहता ना। सपोज ई यूनिफॉर्म है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ ई बार डॉट डी आर बार इज डी वी। डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखना है तो। हेलो, ये वी Yes, sir. फाइनल माइनस वी इनिशियल इज डेल्टा वी ना बेटा? अरे भाई यस और नो? Yes, sir. तो डी वी लिखा मैंने। ई को क्या मैं लिख सकता हूँ? माइनस डी वी बाई डी आर। ओके, ये कहाँ से आया मालूम है आपको? मैं बता सकता हूँ। एफ याद है, इज माइनस डी यू बाई डी आर। हेलो, डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. अरे यार, एफ को लिख सकते एम ई, यू को लिखेंगे एम बी। ई कहाँ से आया? यस और नो? हेलो हेलो हेलो, ये ठीक है ना? ई इज माइनस डी वी बाई डी आर। इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि ई इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। ग्रेडियंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू आर होता है। मैंने आपको बताया था, जब भी ग्रेडियंट की बात करेंगे इट इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जब भी रेट की बात होगी इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड हमको मालूम है कि ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है।
इसको अगर 3 वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो कैन आई राइट दिस एज ई बार विल बी रिटन एज माइनस del v by del x I cap plus del v by del y j cap plus del v by del z k cap. हेलो, वेक्टर है ना भाई ये. दिस r कैन बी अलोंग x y z, तीनों में हो सकता है ना, ये जरूरी थोड़ी है. हेलो हेलो. Yes, sir. हाँ इम्पोर्टेंट है यार. ओके ये फॉर्मूला है. अच्छा, या तो इस ई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ. हेलो बोलो, ये भी चलेगा. टेल मी यस और नो. Yes, sir. ये भी सही है. तो थोड़ा सी है ना, मैं थोड़ा पॉलिश कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा डेरिवेशन के साथ में थोड़ा मिक्सचर हो गया पूरा. आई विल मेक इट मोर स्पेसिफिक. सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, इट इज ई इज माइनस डी वी बाई डी आर. दैट इज ई बार को अगर मेरे को लिखना है तो इट इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको ध्यान रखना है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ. ये भी ठीक है. करेक्ट. अच्छा, दिस इज फ्रॉम व्हाट. क्या दिया है, क्या क्या फाइंड करना है. हेलो, दिया क्या था, v दिया था. दिस इज फ्रॉम v2e ना. हेलो, Yes, sir. v2e. v2e के लिए आपको ये याद ही रखना पड़ेगा. दिस इज इम्पोर्टेंट. पीछे मैंने आपको बताया था ये कहाँ से आया है, दैट इज इम्पोर्टेंट. बट अभी फिलहाल हमको ये फॉर्मूला याद रखना है. अच्छा, हाउ टू डू फ्रॉम v2e. v2e तो मिल गया बराबर. नाउ फ्रॉम e2v. तो e2v के लिए तो इजी है, जो अभी पीछे हमने प्रूफ किया था. दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, तो हमने प्रूफ किया ही है. कैन आई राइट दिस एज v फाइनल माइनस v इनिशियल इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e बार डॉट dr बार फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल. हेलो हेलो, यस और नो. Yes, sir. where dr bar will be dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. ये जो dr बार है ये आएगा, बिकॉज r बार इज x I cap plus y j cap plus z k cap ना. जो dr बार उसका डेरिवेटिव हो जाएगा. और अगर एक वेरिएबल है, सपोज दिस इज ओनली वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस की बात होगी, तो हम लोग कैसे बात करेंगे यहाँ पे. कैन आई से विल बी v फाइनल माइनस v इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ e बार डॉट dx बार. हेलो, माइनस फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल. यस और नो. हेलो, अलोंग y एक्सिस में तो y लेना है, अलोंग z एक्सिस तो z लेना है. और अगर 3 डायमेंशनल है तो dr बार की जगह ये पूरा लेना है. ये चीज का स्क्रीनशॉट निकालो, ये दोनों चीज का. यानी ये आया कहाँ से, इसका सोर्स क्या है. ये सब चीज का सोर्स जो था दैट वाज वर्क एनर्जी थ्योरम. माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज u फाइनल माइनस u इनिशियल. ये एक फॉर्मूला था. दूसरा फॉर्मूला याद है, f इज माइनस du by dr. These are the sources of derivations of these both things. अभी पीछे मैंने डेराइव करके आपको पूरा बताया है ये.
ओके, हेलो हेलो, अरे भाई करेक्ट है क्या? हेलो, ऐसा ये चीज का ध्यान रखना है आप लोग को, ये वाला इट शुड बी वेरी स्मूथ। ये एक और ये दो, ओके। E is minus dv by dr and dv is इसको ऐसे भी लिखा है, dv is minus of e dot dx x initial to x final, dv भी लिख सकते हैं along x axis, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज है, हम लोग सम्स करते हैं ताकि आपको और समझ आए, यू विल अंडरस्टैंड carefully. Introductory exercise 13.4. Yeah. Yeah, now listen to me carefully. 4 numericals are there. And then Monday को है ना, I'll be sending you all a recorded video of satellite video. तो वो पहले देख लेना मंडे को, and then Wednesday को उसके sums कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? I'll send you a special recorded video on satellites and motion and everything, तो वो देख लेना आप लोग। The gravitational potential due to a point mass is given. V दिया हुआ है आपको, बेटा ये V दिया है। Find the gravitational field, क्या चाहिए? E चाहिए, E। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला E इन टर्म्स ऑफ V? V to E ना? हेलो, फॉर्मूला बोलो। हेलो, अभी सिखाया बेटा, क्या फॉर्मूला है? माइनस ऑफ डेल V बाय, I cap आप देख सकते हो तीनों 3 डायमेंशन है ना, एक्स वाई है, जेड भी है यहाँ पर। डेल V बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल V बाय डेल जेड, डू यू अग्री? ये जेई वालों का फेवरेट सम है, फेवरेट, और ये ई बार रहेगा। चलो, इस चीज का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स, फटाफट। विद रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स, वाई और जेड को कांस्टेंट पकड़ना है, क्या हो जाएगा? 6xy I cap 6xy आई कैप, बिकॉज सेकेंड टर्म तो 0 हो जाएगा। अच्छा, आगे बोलो, डेल वी बाई डेल वाई क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई? विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है तो क्या हो जाएगा? 3x square plus 3y square z 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर जेड जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड, बोलो। y cube हो गया आंसर। हेलो, यस और नो? हेलो, बोलो। अच्छा, कभी कभी है ना आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स भी देते हैं। सपोज कहता है कि फाइंड ई बार एट 1,1,1, क्या करूंगा मैं? सब्स्टिट्यूट। हाँ, सब्स्टिट्यूट एक्स वाई जेड को 1,1,1 डाल दो, वैल्यू मिलेगा आपको, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। हेलो, मतलब अगर मैं 1,1,1 डालू तो ये कितना हो जाएगा? देखना, -6 जे कैप, जे कैप नहीं है, आई कैप है ना ये पहले वाला, हाँ आई कैप, प्लस क्या हो जाएगा? 6 जे कैप प्लस के कैप। हेलो, यस और नो? yes ओके, दिस विल बी द रिजल्टेंट आंसर। या तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो बिकम माइनस ऑफ रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हेलो, सही है ना? यस और नो? ये एकदम टिपिकल क्वेश्चन है V2E वाला। एज आई टोल्ड यू, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और बेसिक मैथमेटिक्स है। अप्लाई एंड गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है। Gravitational potential at x is equal to 2 is decreasing at the rate of
10 joule per kg meter along the positive x direction. ओके क्या दिया ये, कोई बता सकता है ये है क्या, ये क्या है? dv by dr minus dv डी by dr. डीवी बाई डी एक्स है ना, एक्स है ना, आपकी बात सही है, करेक्ट है. हेलो, along x axis is minus dv by del x, कितना दिया है, 10 जूल पर केजी मीटर, यस और नो. हेलो, ये दिया हुआ है. It implies that the magnitude of gravitational field at x is equal to 2 is also 10. अच्छा, what is del v by del x only? Can I say this is nothing but ex? हेलो हेलो, Yes, sir. ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है along which axis? X axis, yes or no? Yes. Hello. It implies that the magnitude of the field is 10. क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, स्टेटमेंट सही है कि गलत है? हेलो, स्टेटमेंट It's सही wrong है कि why it is wrong? because they have not said about the other directions. EY and EZ no information given, बराबर क्या, सही है ना? ओके, यस और नो, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ ना, बिकॉज कैन आई से ई इज नथिंग बट व्हाट, अभी तो सिखाया मैंने, ई इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप. मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि ई बार कंप्राइजेज ऑफ ई एक्स बार प्लस ई वाई बार प्लस ई जेड बार, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, इधर तो दिया नहीं है ना, तो क्या हम ई नेट फाइंड कर सकते हैं? वी कैन नॉट फाइंड ओनली ना. हेलो हेलो, अगर ई वाई और ई जेड 0 होता तो मैं कह सकता कि ई एक्स और ई नेट सेम है, बट यहाँ पर नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट ई वाई एंड ई जेड, therefore I cannot find the value of E net, so the statement over here is false. Did you understand? Hello हेलो हेलो हेलो, यस और नो. देखो इसका मतलब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि along the positive x direction potential is decreasing. हेलो, along suppose ये x axis है, ये बोल रहा है अगर आप x axis में चलते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, तो at x is equal to 2 meter it is decreasing at the rate of 10 जूल पर केजी, मतलब 10 का गिरावट हो गया. क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये x0 है, ये x2 है, ये x4 है, ये x6 है. ओके, यहाँ पर सपोज पोटेंशियल था 100 वोल्ट, यहाँ पर हो जाएगा 80, यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा. हेलो, क्या समझ आ रही है बात? सपोज सपोज पोटेंशियल का गिरावट कांस्टेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस. हेलो हेलो हेलो, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ये मतलब जैसे आप अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रैवल करते जा रहे हो ना, पोटेंशियल गिरता जा रहा है. एंड कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट इंफिनिटी? कितना हो जाएगा भाई? 0. 0 हो जाएगा ना, यस और नो? So, but it's not possible for potential to decrease linearly, right? हाँ, मैं खाली बता रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे ही. हेलो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ओवर हियर Yes, sir. कि पोटेंशियल गिरता जा रहा है. आई डोंट नो द रिलेशन ओवर हियर, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि ऐसे हो रहा है कि आप अगर ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो पोटेंशियल का गिरावट होता जा रहा है.
मतलब अगर यहाँ पर एक मास m है, क्या मैं कह सकता हूँ ये अपना सोर्स मास है? आप जितना सोर्स मास से दूर जाएंगे उतना पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हेलो, पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा बेटा? कम होगा। कम हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सी फीलिंग करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि आप सोर्स से जितना दूर जाएंगे ना उतना आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा। एंड अगर आप फील्ड के बाहर ही चले जाएंगे ना इसके, सो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू फील। गेटिंग इट? हेलो, मतलब ये आपका सपोज एक आपको एक बिजनेस करना है तो ये आपका मेन मार्केट है। हेलो, आप अगर मार्केट के बहुत नजदीक हो ना तो आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हेलो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यार, बोलो। आप इधर आ गए तो क्या होगा? पोटेंशियल विल डिक्रीज। डिक्रीज। एंड अगर आप इधर आते हो तो पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। डिड यू गेट इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? ये मैं बताना चाह रहा था आपको। हम्म, ये चीज है बेटा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The gravitational potential in a region is given by this much. Find the magnitude of the gravitational force. Easy है एकदम। सबसे पहले v दिया है तो v टू e कन्वर्ट करो। आता है क्या? v टू e, e को लिख सकते हैं। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो फटाफट, कम ऑन। इस फंक्शन का, हेलो, फंक्शन का डेरिवेटिव, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। -20 बाहर निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस जी कैप। नहीं, यहाँ पर x, हाँ, तो x का y कैप, y i कैप, नहीं i कैप प्लस j कैप आएगा। ये हो गया, ये e बार मिला। Okay, what will be the magnitude of e? What will be the magnitude of e? हेलो यार 20 बोलो। रूट 2। इसका तो √2 आएगा ना, पता है ना, न्यूटन पर केजी। एक बार मिल गया। अभी आपको f चाहिए, f इज m इंटू ई, e is f by m कितना है? 0.5 इंटू e is 20 √2, दैट इज 10 √2। करेक्ट है ना? हेलो, यस और नो? फाइन। फोर्थ क्वेश्चन, the gravitational field in the region E bar is given as 2i cap plus 3j cap. Find the work done by gravitational field when a piece of mass of 1 kg is moved this much on the line this much from year to year. Okay, ठीक है। Now fine, ध्यान देना। Can anyone tell me what is the force acting? फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू ई बार। m कितना है? 1 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप।
एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? आर फाइनल बार माइनस आर इनिशियल बार, दैट इज व्हाट इज आर फाइनल माइनस 2 i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ i कैप माइनस j कैप, बिकॉज वो माइनस अंदर चला जाएगा. यस और नो? हेलो, ये फाइनल है ना, ये इनिशियल है ना? यस और नो? माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप, यस और नो? हेलो, Yes, sir. ये समझा? वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है? F bar dot S bar. करके देखो, एफ बार डॉट एस बार कितना होता है? कितना होगा? 0. 0 हो जाएगा ना? 0. 6 है, सॉरी, आई कैप नहीं आएगा. हेलो, क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Okay. So the displacement vector and the force vector are perpendicular to one another. So work done is going to become 0. That we know how to do it. ये तो हम कर चुके हैं work energy theorem में पहले भी. That is the whole case how to do it. ठीक है? So this was all about two concepts which I have done: introductory exercise 13.3 and 13.4. Now next exercise will be based on satellites 5, 6, 7. Will be totally based on satellites. इसका मैं ना पूरा 5, 6, 7 का पूरा फिल्टर करके एक वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, जो मैंने भेजा नहीं है अब तक, एक नया वाला वीडियो है जो मैं भेजूंगा, जिसमें पूरा सैटेलाइट कवर हो जाएगा. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग है ना? पूरा सैटेलाइट मोशन उस वीडियो में पूरा सिनॉप्सिस के साथ में कवर हो जाएगा. वो आपको देखना है मंडे को. एंड वेडनेसडे आई विल बी डूइंग 13.5, 13.6 एंड 13.7 साथ में. ओके, so that we can finish it off, and then Friday we can start with our objective exercises, and next week we'll finish it off with gravitation. ठीक है ना बेटा? चलो, thank you, take care, bye. Bye, sir. Thank you. Thank you. Bye.